છોકરાઓ અમારે કઈ માનવા તૈયાર નથી, અમે કઈ કહીએ છીએ તો કઈ માનવા તૈયાર નથી। આજે નાનકડી વાત કહેવા માંગુ છું। આજે અતિશય નહીં કરો, પણ આજે આખા વિશ્વની અંદર આપણા જૈન સમાજની અંદર 15,787 ભગવંતો છે। એની અંદર ટોપ 10 ની અંદર પ્રકાંડ વિદ્વાન કહેવાય કે વિદ્વતાની અંદર જેનો નંબર આવતો હોય। દેવી સુરીની અંદર ત્રૈલોક્ય મંડળ વિજયજી મહારાજા છે, પુણ્ય વિજયજી વલ્લભ સુરી સમુદાય પીડી પછીમાં પુણ્ય વિજયજી મહારાજા થઈ ગયા। પ્રેમપુરી મહારાજ સમુદાયની અંદર હરુ વિજય મહારાજ એવા ટોપ 10 ની અંદર નામ આવે। એવાની અંદર આવું ઉત્તમ ચાતુર્માર્ગ એ તમારા સૌના સૌભાગ્ય। મહેન્દ્રભાઈઓએ કે સંઘના પદાધિકારીઓની એ બધા એ ગુરુ ભગવાનને લઈ આવ્યા એ તમારા સંઘનું સૌભાગ્ય કહેવાય। આજે એટલું જ મારે કહેવું છે, એક જ વાત બોલો મારી માનશો? એક વાત, જો ગુરુ ભગવાન આટલી મહેનત આપની પાછળ કરતા હોય, તમે ફક્ત એટલું વિચાર કરો, આપણે સુવાના 6 કલાક 7 કલાક કે 8 કલાક આપણે સુવામાં જતા હોય, આરામ કરવાના પ્રમાદની અંદર જતા હોય, જ્યારે આ ગુરુ ભગવાન આખા દિવસની અંદર 8 કલાક વ્યાખ્યાન આપે છે। કેટલા કલાક? આપણા રેગ્યુલર તમારા કાર્યક્રમના 6 કલાક તો પાકા, અને રાત્રે વળી 7 થી 8 નો બીજો ક્લાસ, 8 થી 9 નો બીજો ક્લાસ, એ રીતે આખા દિવસના 8 કલાક, અને શનિવાર ને રવિવાર છૂટી નહીં, શનિવાર ને રવિવારના 9 કલાક। કેટલા કલાક? તમે વિચાર કરજો, આ 8 કલાક કે 9 કલાક સાંભળવાની તાકાત નથી મારી કે નથી તમારી, પણ આજે વિચાર કરજો 8 કલાક જ્યારે જગત માટે, લોકો કઈ સુધરે, લોકોના જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવે, લોકો કઈ જાગૃત બને, એના માટે જ્યારે 8-9 કલાક પોતાનું તત્વ ખોરવતા હોય, તમારા માટે યોગદાન આપતા હોય, પોતાના ઘડા ફાડીને તમને જગાવવા માટે મહેનત કરતા હોય। આજે આ દિવસ સુધી 72 વર્ષના ચોમાસાની અંદર જે સંઘવાળાએ તપસ્યા કરી હોય તે પ્રમાણે આપણે ચાલતા હોઈએ છીએ, જે પ્રમાણે મેનુ હોય તે રીતે ચાલતા હોઈએ છીએ। જ્યારે ગુરુ ભગવાન આપણને ખાવા પીવા માટે આટલી જાગૃતતા દર્શાવતા હોય, ત્યારે મારું કહેવું એટલું છે, કોઈ આગ્રહ નથી, કોઈ ફોર્સ નથી, પણ આજે આ લોગસ તપ ચાલે કેટલા દિવસ તો તપ છે મહેન્દ્રભાઈ? 48 કે 40, એમાં વ્યાસના કેટલા આવે છે? 24 વ્યાસના આવે છે। મારી ભાવના એટલી છે કે 24 વ્યાસનામાં ફક્ત 4 જ વ્યાસના। કેટલા વ્યાસના? 24 વ્યાસનાની અંદર ફક્ત 4 જ વ્યાસના। એવું કરો કે ગુરુદેવ તમને કાગળ અને પેન આપીએ છે, તમારી શું ભાવના છે કે આજે મેનુ કયો રાખવાનું છે, તમે કહેશો એ મેનુ અમે તૈયાર છીએ। આ દિવસ સુધી 72 વર્ષના ચોમાસાની અંદર સંઘવાળાએ જે ખરાવ્યું ખાતા ગયા, ભક્તિઓ અભક્તિઓ ચાલે ન ચાલે, શરીરને અનુકૂળ હતું પ્રતિકૂળ હતું બધું જ ખાધું છે, પણ આજે આ 24 વ્યાસનાની અંદર ફક્ત 4 જ વ્યાસના। કેટલા વ્યાસના? બીજું પણ તમને જે કરો કરજો, ફક્ત 4 જ વ્યાસના। તમે જેટલા પણ તપસ જોજો, સામે ઊભા થઈને ગુરુ ભગવાનને કહો કે 4 વ્યાસના એવા કરો કે તમે જે મેનુ લગાવશો, ચાય નહીં હોય તો પણ ચલાવીશું, ભાત નહીં હોય તો પણ ચલાવીશું, આ નહીં હોય તો પણ ચલાવીશું, પણ 4 વ્યાસના એવા તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, આપની ભાવના પ્રમાણે, આપની એક વાત કહું અનાજ અનાદિકાળથી આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબ ચાલ્યા છીએ। જે ખાવું જોતું એ બધું આપણે ખાધું છે, પીધું છે, મોજ મસ્તી બધું જ કર્યું છે, પણ આજે જે ગુરુ ભગવાનને લાવ્યા છીએ, જે ગુરુ ભગવાનને આપણે આટલા હોશથી ઉલ્લાસથી તેડાવ્યા છે, એ ગુરુ ભગવાનની ભાવના શું છે, એ ગુરુ ભગવાનની વેદના શું છે, એ વેદનાને વેદનાને આપણે આ દિવસ સુધી જાણી નથી શક્યા। મારી ભાવના છે, જેટલા પણ જે તપસ્યા નથી એનું તો કઈ મિનિંગ નથી, પણ જે તપસ્યા કરી રહ્યા છે લોગસ તપરા, એ બધા એકી અવાજે, ખાલી મહેન્દ્રભાઈ નહીં, ખાલી 1-2 શ્રાવિકાઓ નહીં, ખાલી કિરણબેન નહીં, પણ જેટલા 24 લોગસ તપરા છે એ બધા જ રે સ્વીકારવા તૈયાર કે ગુરુ ભગવાન આપ 4 વ્યાસના એવા નથી આપો કે આપનો જે મેનુ હોય એ જ મેનુ બનશે, બાકીના 20 વ્યાસનામાં તમને જે ખાવું હોય ખાલી। બરોબર છે? તો આવી ભાવના છે, જેમની ભાવના હોય તો તૈયાર થજો। दूसरी क्लास का विषय इस समय यहाँ पर कर्म का चल रहा है। एक तरफ आपको ये देखना है कि ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु
जैसे आटे में से रोटी बनती है, वैसे इस कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में से कर्म बनते हैं। दो ही बात सामने रखिए, आटे में से रोटी बनती है और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में से कर्म बनते हैं। बोलो, अभी रिपीट करना है सेंटेंस। जैसे आटे में से रोटी बनती है, वैसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में से कर्म। अब कर्म बनने के लिए सबसे पहला स्टेप आ रहा है आश्रव। आश्रव, आप ये शब्द लिखिए। आश्रव का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी चेतन आत्मा है, अब इसके अंदर एक तरफ आपके पास मन है, इधर आपके पास वचन है, इधर आपके पास काया, ये शरीर है। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जहां से भी ये खींच करके अंदर आत्मा में आए, अब इसको कहते हैं आश्रव। अब ये आश्रव जो है, जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि ये आश्रव, आप डब्बे में से आटा जो है परात में लेते हो, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बाहर से मन वचन काया के द्वारा खींच करके अंदर ले रहे, ये आत्मा में अंदर आएंगे। ये आने की प्रक्रिया, इसको नाम कह रहे हैं आश्रव। बरसात पड़े रही है, टेरेस बांधे थी, पानी लीकेज भी होकर आपके घर में आ रहा है, बाहर से अंदर आना, ये आश्रव। अब ये देखिए कि आश्रव या तो शुभ आश्रव होता है या अशुभ आश्रव। या तो पुण्य का आश्रव जो है, इसको शुभ नाम दिया, और ये अशुभ आश्रव है। अब आप जो है मन वचन काया का उपयोग या तो अच्छा करो या खराब। एक गरीब आपके भिखारी घर में आया है, तो या तो उसको दान दो या गाली दो। कोई करो बात साहब, दान दो कि गाली दो? अब आप क्या देते हो, कैसा दे रहे हो, आपके ऊपर आधार है। आप गाली भी देने जैसी है कि नहीं है, वो भी विचार नहीं कर रहे हो, दे रहे हो, ये हो गया अशुभ आश्रव, पाप हो गया। अशुभ आश्रव से भी अब वापिस प्रक्रिया यही होगी। शुभ आश्रव करोगे, दान दिया है, कुछ नहीं, जो है आपने 2 केले दे दिए, वो केला लेके चला जाएगा। वो भिखारी है, गरीब है, लुटारा नहीं है, मांग करके ले रहा है, झपट करके नहीं ले रहा है, चोरी करके नहीं ले रहा है, इसलिए आपको दान देना चाहिए। आप नहीं देंगे तो कल झपट कर लेगा, नहीं देंगे तो कल वो लूट करके लेगा, चोरी करके लेगा, तो पहले ही समझदार हो जाओ। 2-2 केला रोज देते रहो, उसका फायदा है या आपका फायदा है? भाषा बनने फायदो कोनी बनने करता 10 गणो फायदो आपने। आपको जो है ये 10 गुना यहाँ पर पुण्य उपार्जन हुआ है, और ये पुण्य कल चल करके आपको सुख देने वाला है। आपना 2 केला खावाते बन्नो पेट भरी जी, उसको पुण्य नहीं लग रहा है, वो सुखी नहीं होगा। आपको 10 गुना पुण्य बंधेगा, सुखी आप बनेंगे। आपके पास दीर्घ दृष्टि है, इफ यू हैव दैट मच लॉन्ग विजन, मारे भविष्य में सुखी बहनों है, तो आज आप उसको 2 केला खिलाते रहो। वन्य हाथ जोड़े ने प्रार्थना कर जो कि भाई साहब रोज आके ले जा, आप रोज आइए, रोज ले जाए। कहाँ मिल रहे भाई साहब? आपके घर आए कौन और ले कौन?
कौन आएगा आपके घर में भाग्यशाली? आप उसको सामने से प्रार्थना करिए कि भाई साहब रोज पधारना। लोग एक गरीब भिखारी को ये पता चल गया, दान देने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से सुख निश्चित होता है। वो खुद भिखारी है, उसके पास ज्यादा नहीं है खाने के लिए। उसने गिनती की कि आज मेरे पास मिल करके आधी आधी रोटी भी होते होते 6.5 रोटी हो गई। उसने एक रोटी के 2 टुकड़े करके आधे आधे 2 कुत्ते के बच्चों को खिलाई। 2 कुत्ते के बच्चे खाए, उसको बड़ा संतोष हुआ। दूसरे दिन देखा कि 1 रोटी ज्यादा मिली है तो उसमें से 2 रोटी खिलाई। तीसरे दिन उसने शुरू किया कि थोड़ी मिल जाए, कहीं से ज्यादा मिल जाए, तो 2-3 कुत्तों को खिलाने लग गया। आपको सुनकर हैरानी होगी, 12 बरस तक इस तरह से उसने किया और 13वें बरस के बाद तो ऐसी पुण्य चमक गई, सुखी संपन्न हो गया। अब उसने पहला एक ही काम किया, रोज सुबह उठ करके एक तपेला भर के खिचड़ी बना करके नमक मिर्ची वाली बनाकर अपने घर के दरवाजे के पास लेके खड़ा रहता। जो भी कोई आए उसको खिलाओ, जो भी कोई आए उसको खिलाओ। किसी ने आकर उसको पूछा, भाई साहब क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बात? बोले ये दुख मैंने देखा है, इसलिए मैं समझता हूं कि दुख क्या होता है। पेट का खटना कितना भारी होता है ये मैं समझता हूं। बस अब मुझे संतोष है, मैं खा रहा हूं उसका संतोष नहीं है। मैंने भीख मांगी 12 बरस तक, उसका संतोष नहीं है। आज मैं किसी को खिला रहा हूं, इसका संतोष मुझे बहुत ज्यादा। आप भी कभी करके देखो, जब ये पुण्य आपका अंदर स्टॉक में इकट्ठा हो जाएगा, ये जितना फैलेगा, जितना विस्तार बढ़ेगा इसका, अब ये पुण्य आपका जितना बड़ा फैल जाएगा, शायद ये इसी जन्म में फल दे दे। ये मैंने लिखा है विपाक, विपाक का मतलब है फल। कल आपको कौन सा कर्म कैसा फल देगा, आप इसको रिजल्ट के रूप में देखिए। कल ये कैसा फल देगा आपका, जैसा किया है वैसा। इधर आपको ये देखना है कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के घर में आने के दरवाजे, मन वचन काया, 3 दरवाजे, 3 रास्ते से ही ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में प्रवेश करते। बोलो ग्रीन साड़ी वाला माजी, ये रिपीट करना है। जय भगवान भला कर। बोलो काका, लाल शर्ट वाले, खाली रिपीट करना है, बोलो तो सही बात है। बोलो भाषा बोलो। कुर्सी माथे बैठा, वैसे माझे बोली, आप नहीं बोला। हाँ बोलो पीछे वाले, हाँ आप भी चश्मे वाले बोलो। बिल्कुल बरोबर। आत्मा है, आत्मा के दरवाजे कितने हैं? ये हॉल है, ये दरवाजा, ये दरवाजा, वो दरवाजा, इधर खिड़कियां। हमारे पास इस आत्मा के पास में इधर मन है, इधर वचन योग है, इधर शरीर है। ये 3 दरवाजे आपके पास मुख्य है और इन तीनों की एक्टिविटी जहां से जो बढ़ेगी साहब, वहीं से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर आत्मा में आएंगे। તમે કેમ ડબ્બામાંથી લોટ કાઢીને પરાત્મા લીધો, ये इस तरीके से होगा। अब अंदर क्या होगा, તમે લીધા પછી પરાત્મા લીધા પછી गोल गोल કરીને વચ્ચે ખાડો કરીને કઈ નાખો। अब वही प्रक्रिया यहाँ होगी बंध में। आश्रय के बाद सेकंड स्टेप आएगा बंध का। एमा तमारा रागद्वेष छे, एमा क्लेश कसायो छे, वो इसके अंदर पानी का, तेल का, नमक का, मिर्ची का काम करेगा। रसबंध जिसको बोलते हैं,
तो रस बंधक के अंदर शक्कर जैसे दूध में घुल जाए, नमक जैसे दाल में घुल जाए, एक रस हो जाए, तब वो जाकर के बंद होता है। और बंद होने के बाद कर्म ऐसी संज्ञा बनती है। आटा लेने के बाद आपको पानी वगैरह डाल करके गूंथ करके अब आप उसको बॉल बना दो, उसके बाद रोटी बनेगी। वो गोल गोल बन करके तवे पर सेकी जाए तब रोटी बोलेंगे। ये प्रक्रिया है कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु मन वचन काया के योगों से आत्मा ने अंदर तो ले लिए, अब उसको एक रस करो। आपके रस में आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये रस है। या तो राग होगा तो शक्कर की तरह से मीठा, और या द्वेष होगा तो नमक की तरह से खारा। अब जो डालोगे, जैसा डालोगे वैसा बनेगा। अब उस प्रकार से बन जाए तो समझ लेना बख्शाले, आपको कर्म बंद हो गया। अब कर्म की संज्ञा पड़ गई। अब गोल गोल होकर तवे पर सेक गई, अब रोटी बन गई। अब ये कर्म हो गया तो कर्म आत्मा के साथ चिपक करके रहेगा। ये कर्म बन गया, अब आत्मा के साथ रहेगा। अब जो कर्म आत्मा के साथ रहेगा तो उसकी एक टाइम लिमिट आ गई। कौन सा कर्म 50 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, 1000 साल रहेगा, लाख साल रहेगा, करोड़ बरस रहेगा, अरब बरस रहेगा, खरब बरस रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आत्मा तो परमानेंट है, आत्मा सदा काल रहने वाली है, तो कर्म अपनी टाइम लिमिट तक रहेगा। ये मेट्रो वाले ने ऊपर तो ब्रिज बांध दिया, फ्लाईओवर, अब उसका सीमेंट और आरसीसी और अंदर स्टील की पकड़ कब तक रहेगी? 100 साल के बाद क्या होगा? वैसे ही जो है ये आत्मा के साथ में कर्म बन गया, अब ये कर्म कब तक रहेगा? ये कर्म आत्मा पर कब तक रहेगा? जब तक उस कर्म की टाइम लिमिट पूरी नहीं हो जाती वहां तक कर्म रहेगा। कल कर्म की टाइम लिमिट पूरी हो गई, ये कर्म अपनी तरह से आपको रिजल्ट देना है, लेकिन बीच में आपको ये जो लग रहा है अबाधा पीरियड, ये जो है एफडी में रकम रख दी, 10 लाख एफडी में रखने के बाद 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। हमें आपको के 10 दिन में मने पूरा ब्याज दो, कोई नहीं देगा। एक कर्म बंधने के बाद वो आत्मा के पास अंदर स्टॉक में है, आज का आज रिजल्ट नहीं देगा। उसका अबाधा काल, आत्मा को बिना तकलीफ दिए अंदर पड़ा रहने वाला काल, वो उदय में नहीं आएगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन जब उदय में आएगा तब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रोक सके आप। फिर भैरू जी भी नहीं आएंगे, पद्मावती नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा, किसी की ताकत नहीं है साहब। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि कौन सा कर्म बना है। अभी नाम तो आपने पढ़ लिए, 8 नाम देख लिए, 8 नाम की सब डिविजनल प्रकृतियां देख। मैंने किए हुए कर्म मेरे साथ में, आपके कर्म आपके साथ में, बेटे के साथ है, बेटी के कर्म बेटी के साथ है, सबके कर्म अपने 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 साथ है भाई। मेरे कर्म आपको काम नहीं आएंगे, आपका कर्म मेरे को काम नहीं आएंगे, सब अपने अपने तरीके से अपने कर्म लेकर बैठे हो। अब जिसका टाइम कम ज्यादा कितना है, और एक कर्म आप पिछले जन्म में आधा भुगत के आए हो, वो आधा बाकी है, तो आज पूरा करो। आधा कर्म बाकी है लेकिन आपका आयुष्य पूरा हो गया, चले गए, तो पाव भाग बाकी रहा, पाव फिर अगले जन्म में पूरा कर। महावीर स्वामी को प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, एक कर्म को आत्मा कितने जन्मों तक भुगत सकती है? प्रश्न क्या है?
एक आत्मा कर्मों को कितने जन्मों तक भुगतती है? एक कर्म को आत्मा कितने जन्मों तक भुगत सके। तो महावीर स्वामी ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइम लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर कर्म। अब उस कर्म की टाइम लिमिट कितनी है, आत्मा खुद जब कसाय होगा तो वो तय करेगा। अपराध यहाँ होते हैं तो 10 साल की सजा, 20 साल की सजा, 50 साल की सजा, 100 साल की सजा, आजीवन कारावास, ये कौन तय करता है? यहाँ पर जज के हाथ भी बंधे हुए हैं कानून के हिसाब से। धारा नंबर ये के अंदर जो है प्रावधान है कि इनको इतने वर्षों की सजा, तो वो कानून के अंदर जो है प्रावधान नक्की किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन नक्की करेगा? टाइम काल जो है आपके कसायों की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, आपके कसाय भाव में तीव्रता कितनी है, उतने काल तक जो है आपको वो कर्म बरोबर बना रहेगा, सजा भुगतते रहोगे। आप ये मत सोचना कि आज दुखी हो, कल महाविद्य में जाने के बाद अभी आधा दुख आपको और भुगतना है। यहाँ की आधी जिंदगी मतलब 100 में से 50 बीते, वहां की आधी जिंदगी मतलब क्या, 84 लाख पूर्व में से आपके 40 लाख पूर्व बीते हैं। तो आधी जिंदगी वहां भुगतना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप? या तो कर्म बांधते पहले अपने टाइम लिमिट इतनी मत रखो, और इतनी टाइम लिमिट ज्यादा नहीं बढ़ानी हो तो इतने ज्यादा राग द्वेष कसाय नहीं करने चाहिए। भाई है पति पत्नी है, हो गया झगड़ा, चलो सुबह की झगड़े की बात भूलकर शाम को वापस साथ में बैठ के भोजन कर लो। शाम को झगड़ा हो गया, अबोला मत बनाओ, कल फिर वापस जो है सुबह में साथ में बैठ के भोजन कर लो। बीते हुए झगड़े को भूलने की कोशिश करना, इसका नाम है मिच्छामि दुक्कडम। बोलो माँ जी, अर्थ बोलो। कर्मों करो, सुधारो करो। अब ये बीते हुए झगड़े को भूलना है, अब उसके लिए शब्द दे दिया मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम देंगे सही, लेकिन भूलेंगे नहीं। तो आप मिच्छामि दुक्कडम शब्द बोलने को तैयार हो, लेकिन अंदर से बात को भूलने के लिए तैयार नहीं हो। आवा दो, आज पासा हॉस्को आवा दो, ऑफिस थी आवी कि नहीं, आज जिमारती वक्ते पास से वॉइस कैसेट चालू करूं, क्या फायदा होगा? तो फिर कल मिच्छामि दुक्कडम दिया तो आज वापिस वही कैसेट क्यों चालू कर रहे हो? नहीं बाप से काले झगड़ो हुओ पण हवजी बस में आया, मजा नहीं आई थोड़ो, आज खुलासो करो, आज बरोबर पूरा खुलासो करें जवाब। क्यों ऐसा करते? तो जो वचन से बोल दिया वो मन से तो नहीं सुन पाता, तो वो बंदा है क्या? वही मिच्छामि दुक्कडम से टलेगा। मिच्छामि दुक्कडम उसके लिए ही शब्द दिया गया है कि आप मिच्छामि दुक्कडम का मतलब ही ये समझो, मिथ्या में दुष्कृतम, मेरा दुष्कृत गलत कार्य जो है वो ठोक हो जाओ, मिथ्या हो जाओ, टल जाए, ये जरूरी है। इतने ऊपर ऊपर की बात से मतलब नहीं है, अंदर आत्मा के अंदर जो बंद हो रहा है उसके अंदर तुरंत फर्क पड़ जाए। यहाँ 100 करोड़ बरस का जो कर्म बंध रहा है वो मिच्छामि दुक्कडम के बाद 10 करोड़ का ही बचेगा। कदरों फर्क पड़ी हो? 100 करोड़ बरस का 10 कर्म 10 करोड़ पर आके रुक जाए, ये फायदा है क्यों? तो आप क्यों 100 करोड़ का बांध के साथ में ले जाओ? क्यों ऐसा करो? आप बरोबर अपनी तरह से मिच्छामि दुक्कडम, भाषा घड़ियाल देख जो कतरी सेकंड में मिच्छामि दुक्कडम बोलो, घड़ियाल में देखने सेकंड कतरी हुई,
सवाल सेकंड का नहीं है। हाथ जोड़े ने मातो नमावे ने बोलवा में अहंकार वश में आवे रही, तकलीफ यहाँ आ रही है। और बोल देंगे, बोल देना नहीं है, बोलने के बाद कल दोबारा याद नहीं कर। आज हौस को आवे पास जिमारती वक्त कोई याद ही नहीं करना। ऐसा भूलिए जैसे कोई घटना घटी नहीं। ऐसे लोगों का संसार चल जाएगा। 100 वर्ष सुधी डाइवोर्स नहीं भे आपरे गारंटी। 100 वर्ष तक घर में कोई नहीं। ये हमारे बुढ़ी माताएं बैठी है, कई लोग बुजुर्ग है, अनपढ़ थे, ज्यादा नहीं सीखे हुए थे। मारी मम्मी पण खाली नाम लखनो आवतो ने सोपड़ी वासनी आवती, वधारे कोई नहीं आवतो। लेकिन इतने बड़े परिवार में कभी डाइवोर्स का प्रश्न नहीं आया, किसी का डाइवोर्स का प्रश्न नहीं आने दिया। परिवार के अंदर किसी की शादियां टूटने का कोई निमित्त ही नहीं बनने दिया। सुख दुख तो जीवन में आते रहे, लेकिन मम्मी ने कभी न दुख की बात की न सुख की बात की। मुँह अतरो हैंग भूले ने मारा 30 वर्षी तब करती रही। ये उनके जीवन की उपलब्धि है। अब रागद्वेष की क्लेश कसाय की बात करके वापिस आज जबान खराब क्यों करना? अब ये भी प्रसंग टल गए, ये भी निमित्त टल गए। संसार है, संसार में तो सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये नहीं कि ऐसे सुख दुख कल मेरे धर्म आराधना को रोक दे, कल मेरी अंतराय कर दे, ये होने नहीं दे, ये करने नहीं दे, ऐसा नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता रहनी चाहिए। जीवन जिस प्रकार का जैसा मिला है, अब अशुभ आश्रव करना कि शुभ आश्रव करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। मैं गाली दूं कि रिस्पेक्टिव वर्ड्स बोलूं, बे मने आवे, दोनों आते हैं। मैं गाली गलौज भी कर सकता हूं, गंदे शब्द बोल सकता हूं, और आइए पधारिए, मैं अच्छे मधुर मीठे शब्दों से स्वागत भी कर सकता हूं। अब कोई बोलना ने कोई नहीं बोलना हमारे हाथ में। अगर मैं वहां पर इंसल्टिंग लैंग्वेज बोलता हूं, इफ आई विल यूज द अब्यूजिंग लैंग्वेज, तो भाग्यशाली क्या होगा? फिर मुझे भी कर्म बंधेगा, सामने सुनने वाले को भी आत्म ध्यान होगा, वो भी कर्म बांधेगा, मैं भी कर्म बांधूंगा, दोनों तरफ दुगुने कर्म बढ़े। उनको कर्म बंधाने वाला निमित्त भी मैं बनूंगा। तो जिसको हम कहते हैं करण करावण ने अनुमोदन के अंदर ये दोनों निमित्त साथ में आए, क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा? महावीर स्वामी एक ही बात कर रहे हैं, भविष्य का कर्म बंध देखिए, कर्म का विपाक देखिए, रिजल्ट। अब जिस कर्म का जब उदय में आना है, तो वो रिजल्ट देख करके आज वर्तमान काल में आपको क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय। मेरा बोला हुआ एक शब्द भी आकाश में ब्रह्मांड में कहीं पर भी चला जाएगा, निरर्थक जाएगा, ऐसा मत सोचना। द ईच एंड एवरी वर्ड्स, हमारे एक एक शब्द जो है वो किसी न किसी के दिल में जाकर चुभते, अंदर किसी के दिल में बैठे रहते। शायद कोई 10 साल बाद याद कराए, शायद कोई 20 साल बाद याद कराए, शायद कोई 25 साल बाद याद कराए। वो इतने साल तक उस कसाय के भाव को अपने दिल में गांठ बांध के रखे। हर शब्दों की गांठ पड़ती है, और अगर वैसे किसी ने गांठ बांध के रखी, वो व्यक्ति आपके प्रति अनंतानुबंधी कसाय वाला बनता है। अनंतानुबंधी कसाय वाला। मैं आपको कल यही बताने जा रहा हूं, अनंतानुबंधी कसाय क्या होता है, कैसा होता है, क्यों इसके आधार पर हमारे लिए महावीर स्वामी ने पर्युषण धर्म की व्यवस्था की। क्यों पर्युषण पर्व की व्यवस्था? क्या महत्व है संवत्सरी का, क्या मिच्छामि दुक्कड़म, क्या धर्म? ये सारा आधार कर्म शास्त्र पर। अगर कर्म शास्त्र आपने नहीं समझा तो फिर धर्म शास्त्र नहीं समझ में आए। दिस इज द मेथड ऑफ द डायग्नोस्टिक सिस्टम।
ये निदान की प्रक्रिया है। आप निदान करोगे, डायग्नोसिस करोगे, कैसे होता है ये कर। अब आपने सही ढंग से डायग्नोसिस किया तो उसको कौन सा धर्म करना है, कैसा धर्म। कसाय में बौंदियोरी गौट ने खोलवा वास्ते पर्युषणरो मिच्छामि दुक्कड़म है ने संवत्सरी है। एक लाइन में बता रहा हूं, एक लाइन। बस संसार के व्यवहार में, रोजिंदा जीवन के अंदर, राग द्वेष में, क्लेश कसाय में किसके साथ हमने कैसी गांठ बांधी है, उसका हिसाब चुकते करने के लिए पर्युषण है, संवत्सरी है, मिच्छामि। ये सारी धर्म व्यवस्था जो है, ये मैंने प्रोसेस लिखी है, आपने लिख लिया। कर्म बनने की प्रक्रिया, बने हुए कर्म आत्मा में रहने की प्रक्रिया, बने हुए कर्म उदय में आने की मेथड, उदय में आकर के ये कर्म कैसे सुख दुख देंगे, इसकी प्रक्रिया। इसलिए मैं कहता हूं लिखना क्यों जरूरी है, अब आपको ख्याल आ जाएगा। नहीं लिखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी भी याद नहीं रहेगी, आप इतना भी नहीं समझ पाओगे। ઉદયને વિભાગની અંદર દૂધ ચૂલે મૂકવું અને दूध चढ़ी उभरे जવું, બેમાં ફરક છે એટલે एक उदय में आएगा तो विपाक देगा, कार्य कारण भाव संबंध है। उदय में नहीं आएगा वो रिजल्ट कैसे देगा। हाँ वे समझे। और इसके लिए ये जो नाम लिखा है, इसके ऊपर महावीर स्वामी ने 10 दृष्टांत बताए। सुख विपाक के 10 दृष्टांत, दुख विपाक के। ऐसा विपाक सूत्र एक हमारे 45 आगम शास्त्रों में एक आगम शास्त्र। महावीर स्वामी को पूछा गया कि भगवान किसने कैसे पाप किए और किए हुए पाप का रिजल्ट किसको कैसा उदय में आया। मैंने जी नाम लखे राखो, आवता वर्षे मोटा गच्छाधिपति लावो तो कहीजो के बापसी विपाक सूत्र आगम शास्त्र हम जाओ। ख्याल है, हम कहते तो हमें महाराज जो कोई लाया हमें, लेकिन अगले साल गच्छाधिपति लाना। और फिर वो आपको विपाक सूत्र का आगम शास्त्र समझा, फिर कर्म के कारण निमित्त सब आपको समझ में आ जाए वैसा रखना। भाग्यशालियों, जैसे जैसे देखिए आप दिन बीत रहे हैं, आज सोमवार हो गया, महेंद्र जी शुक्रवार ने 1 महीना पूरा को वैसा। यहाँ हमारा प्रवेश हुआ था 22 तारीख को और आज 17 तारीख है ही है, आप जान रहे हो। 1 महीना हो जाएगा। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 1 महीना भी चला है। मान्य जी पूछावे रही है कि कोई वो हाले रही है, कोई के बंद पड़ी, वो लोग पूछ रहे हैं ऐसा। तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि आज तो चल रहा है ऐसा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो भी हो, बाहर से लोग पूछ रहे हैं તમે આટલું ભણાવો છો, કોણ ભણે છે, કેટલા જન सीखे છે, કેટલા આવે છે, શું ભણે છે, अब वो पूछ रहे हैं साहब। उनके हिसाब से उनका ज्ञान भी सही है साहब, लेकिन ये आपका बाहर जा रहा है, बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। भाग्यशालियों, फिर रविवार आएगा सामने, शनिवार आएगा। शनिवार को श्राविका बहनों की शिविर है। रविवार को दोपहर को 2 से 4 में कल बच्चों के शिविर में ये देवकीर्ति महाराज ने और हेमंत जी महाराज ने जो सिखाया है, दोनों शिविरों की क्लासें अलग हो गई। अब भाग्यशाली विचार करो, अंधेरी नगरी में महेंद्र जी 3 ठिकान तो स्कूल आ ले, कोई ग्राउंड फ्लोर पर, पहले माले पर, तीसरे माले पर, 3 जगह पर चल रही है। और फिर भी कल जो है बच्चों की पाठशाला में करीब 150 के आसपास बच्चे होंगे। संघ की तरफ से जो भाग्यशाली ने लाभ लिया, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी अच्छी दी। आवता रविवार वास्ते फिर करनी गिफ्ट देनी है तो भाग्यशाली नाम लगाओ, जो आपके ही बच्चे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देना ये हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ा अच्छा अनुशासन ये रहा, कल का फोटो जो है वो बाहर जा रहा है, व्हाइट एंड व्हाइट के अंदर सभी लड़के लड़कियां, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी थे, सब ने डिसिप्लिन का अच्छा पालन किया है। ख्याल है, इस समय
अंधेरी नगरी की इमेज बना रहे हैं। एक तो बैंड वाले बच्चे और दूसरे ये सफेद शिविर के बच्चे, तीसरे जो है मंदिर के अंदर स्नात्र पूजा पढ़ा रहे हैं 18। और वहां पर भी कल जो है ये अष्टक प्रकारी की कंपटीशन हुई। माझी एनु रिजल्ट इनाम पाठशाला में इनाम देंगे। जो इनाम के लाभार्थी हो पाठशाला में पधारना, इनाम देंगे। इस रविवार को यहाँ पर भक्तामर अभिषेक का एक आयोजन किया जा रहा है और भक्तामर अभिषेक के अंदर आपको जिनको जिनको भी नाम लिखाना है, महेंद्र जी नो नकरा नक्की करे उस हिसाब से लिखाना। सबको पूजा के कपड़े में 10:30 बजे पधारना और एक साथ में भक्तामर के साथ में अभिषेक हो। भक्तामर के साथ अभिषेक करके साथ में रिद्धि मंत्र है, लब्धि मंत्र है और वो मंत्र का जाप भी आप साथ में करेंगे। कुछ भक्तामर के अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके प्रयोग और हीलिंग के लिए भी ये हमारी श्राविका बहन जी काफी अच्छा प्रयत्न करेगी। सारी मेथड आपके सामने रखेंगे। एक नया प्रयोग है, लेकिन भक्तामर किसको किसको सीखना है, एक रिदम से सीखना है और बसंत तिल का छंद के साथ सीखना है। अगर किसी को अशुद्ध आता हो तो बीच में मत बोलना, नहीं तो वहां पर बाजी बिगड़ जाती है। इसलिए शुद्ध जिसको अच्छी तरह से आता है वो जरूर भाग लेवे। बसंत तिल का छंद कैसे बोला जाता, एक एक लाइन में 14-14 गिनती के अक्षर, छोटी बड़ी ह्रस्व दीर्घ की मात्रा का भी कैलकुलेशन है, गणित है। और एक भी लाइन के अंदर 14 से 15 नहीं हो सकते, 14 से 13 नहीं हो सकते। ऐसे अक्षरों की गणित के साथ वसंत तिल का छंद बना। अब इस छंद के अंदर चढ़ाव उतराव के साथ में कैसे बोलना है, स्वर को भी वापिस राग के साथ में कैसे गाना है, तो उसकी असर वाइब्रेशन कितने पड़ते हैं, कैसी असर होती है। जो भी घर में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन में रहते हो वो लोग पहले भाग ले लेना। छोटा सा अमाउंट नकरा रखेंगे ताकि एक डिसिप्लिन के अंदर सभी लोग भागशाली जुड़ सके, लाभ ले सके। ये एक एक प्रयोग अंदर से वापस किए जा रहे हैं। फिर वापस बच्चों के लिए मंदिर में कोई आयोजन का कार्यक्रम फिर डिक्लेयर करेंगे। जिनको भी भाग्यशाली हो अपनी तरह से बच्चों के लिए कोई गिफ्ट देने की इच्छा हो, या तो आप खुद लाइए और या ट्रस्टी लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें सहयोग